I'm your host, Salim bin Mohammed Rafi, and here is your YouTube channel, Zamir Universal. With Israel like a drunken elephant and a wild dog, now passing over inch by inch and illegally occupying the Syrian, as it is free for all, something to loot, and is proud. Unfortunately, it's a trap for the Jews, which they do not realize. When you spread yourself too thin, no matter whether you are an ocean or a river or a canal, you are absorbed by the sand, and that's what they are doing in the desert. This is just like throwing a bullet up in the skies with no target in sight. And you can see from there that why Israel is a failed state, and now it's going to be a regime change from within. And you will have these extremists either killed, or if you don't believe, then you just look back about a month ago what Assad was planning with the Russian, President Putin, and what happened to him within a matter of 2 weeks. And he was gone, and 50 years of dynasty, his father and him, and all those atrocities and killings he did. I'll show you one of his generals now was left behind, and what the public is doing to you. So public execution, and that's exactly what is going to happen to Netanyahu, his wife, his son, and his whole war cabinet. The only people who will probably be spared is the... You as Congress are complicit in the genocide in Gaza. You keep sending billions of dollars to Israel. Meanwhile, veterans are homeless and committing suicide with more budget cuts on the way. As a 17-year veteran and intelligence officer, I am watching you destroy the American values and jeopardize our national security. Israel is burning children alive. Israel is burning children alive. For 1 year, I have watched Israel burn children alive. You don't care about veterans. You don't care about American values. You are destroying this country. Shame on all of you. May God give you the moral courage. May God give you the moral courage to do the right thing. May God give you your hearts. Please. Shame on you. We need veterans from California all the way to New York to stand against what we are witnessing right now. Your voice is so powerful. We know that as veterans, they are not giving us any of the help that we need while they send our tax dollars to other countries who are committing genocide. Right now is the time to use your powerful voices as veterans to say, enough is enough. We need to save our country from what our own congressionals are doing right now. Free Palestine! Israel kills Palestinian men, women and children, and then they look around the world and they don't receive a single sanction to stop. They are emboldened and they keep acting. I mean, this motion is a joke. It is a joke. As part of a peace process. What peace process? Israel is carrying out a genocide. Israel is carrying out a genocide in Gaza. It's not a peace process. Why is it that 146 countries could find it within their hearts to recognise Palestine right now? Why is it that the Australian government refuses? And how is it that when a Labor senator, Senator Payman, who had the principles and the courage to cross the floor to vote with the Greens to immediately recognise Palestine, why is it that Senator Payman faced more sanctions than Labor has dished out against Israel? What do you all do? What does this Labor government do? They can recognise Israel, but they can't immediately recognise Palestine. You can't end Tuwain's arms trade. You can't cancel the Elbit Systems contract. You can't sanction Israel. And you should all be deeply, deeply ashamed. I wake up every day with Gaza on my mind. Yeah. I go to sleep with it. I wake up with it. Yeah. And to think of the horror that's now being inflicted on Palestinians in the name of my own people, it's just devastating for me. The trauma imprint that's in me is certainly been awakened now. And when I think of my own infancy in wartime, and when I think of what those infants have to go through right now,
I'm not here to say that my suffering is worse than that of other people. I don't compare people's suffering, and I'm just aware of how much pain and suffering there is in the world. There is one way of looking at your own traumas and saying, I'm the worst. I've struggled, I've suffered. Or the other way where you now can so empathetically, so compassionately support anyone who goes through this. गवर्नमेंट जाने का कत्तन बशारुल असद की इनको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि यमन इस वक्त इनके लिए वो तबाही का सामान लेकर आ रहा है कि जो आज से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। देखिए, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इतनी तबाहकुन, यानी अब तबाही हुई है तिल अवीव में, हस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। सीन क्या हो भाई, ये जरा आप समझ लें। इन्होंने थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर लगाया था। अब हुआ क्या है कि यमन के पास अब जो मिसाइल आया है वो तमाम के तमाम अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम से बढ़कर है। ये जो सबसे अहम बात है, यानी आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि यमन के डिफेंस सिस्टम, यानी उनके पास जो था, जैसे वो अमेरिका का मिसाइल या अमेरिका का खास तौर पर कोई ड्रोन गिराते थे, अब ये सोच रहे थे उसी लेवल की कोई चीज़ होगी। उन्होंने इनको सरप्राइज कर दिया है, और सरप्राइज ऐसा कि आप सोचें, थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम अमेरिका से मंगवाया कि भाई आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें बचाएंगे, फलाना करें, अगलों ने उजाड़ के रख दिया। ये इतना तबाहकुन हमला था कि आप ये सोचें कि इस वक्त उन्होंने किया क्या है कि एक टेस्ट किया है, एक हमला किया है। अब आप इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि जब ये 15, 20, 25 मिसाइल इकट्ठे मारेंगे, ये तो एक नहीं आपसे रुक पाया, जब इकट्ठे मारेंगे तो फिर हशर क्या होगा, और 7 छोटे बड़े जो मिसाइल मारेंगे उनका क्या होगा। बहरहाल यमन से अब जो लड़ाई होने वाली है, जो शुरू होने वाली, ये असल में उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। शाम के अंदर की सूरत हाल जो है सो है, ये अब गजा की जंग या तो बंद होगी मुकम्मल तौर पर, और फिर या फिर यमन इनको उजाड़ कर रख देगा। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि 2 दिन पहले यमन ने जब मिसाइल मारा तो इन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया कि कैसे ये मिसाइल हिट नहीं हुआ, यानी पूरी तरह जो हमने मिसाइल मारे थे वो इनको हिट क्यों नहीं किया, उसको तबाह क्यों नहीं किया, उसने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया। अब आज आप बताइए आप क्या करेंगे। आपके पास तो इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो क्लियरली नजर आ रही है कि तबाही आपके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। कंप्लीटली 100% इनके इंटरसेप्शन फेल हुई है। यानी आप ये सोचें कि इस वक्त इनके जितने भी खास तौर पर रेस्टोरेंट्स थे वो उन जगहों पर बंद हैं, जो हस्पताल थे उनमें इमरजेंसी नाफिज है। अब आप ये बताइए कि आप क्या लड़ाई करेंगे जाकर यमन से। ये असल में धोखा इन्होंने दिया कि हमने यमन को जाकर तबाह किया, हमने उन पर हमला किया, उनके जेट्स गए थे तबाह करने। तो असल अब जो जंग है वो इजराइल पर मुकाबला अब यमन है। आपने एक चीज गौर नहीं किया, जरा चीजों को देखें। जुलानी पर $1 करोड़ उसके सर की कीमत थी, $1 करोड़। अमेरिका ने कल $1 करोड़ उसके सर की कीमत खत्म कर दी। यानी आप डॉट्स कनेक्ट करें। क्यों? जुलानी ने एक दिन पहले बयान दिया है कि हमारी इजराइल से कोई लड़ाई नहीं है, इजराइल को हमसे कोई नुकसान नहीं होगा। यही तो वो चाहते थे कि इजराइल को कोई नुकसान ना हो। लेकिन यमन का आप क्या करेंगे? आपको पता है रिसेंटली इजराइल ने क्या किया था? उनकी यानी मोसाद ने पूरी कोशिश की कि हमें एक ऑपरेशन करना चाहिए, और वो ऑपरेशन हमें करना चाहिए यमन के अंदर। यमन में ऑपरेशन वो इस तरह का करना चाह रहे हैं कि यमन की खास तौर पर जितनी यानी वहाँ पर पॉपुलेशन है वो हूसियों के खिलाफ निकल आए। ये असल में बड़ी नामुमकिन सी बात है। यानी आप ये सोच लें, पिछले 20 सालों में रजीम चेंज ऑपरेशन करने की ईरान में कोशिश हुई, नाकाम हुई, अब तक हो रही है, नाकाम हो रही है। कामयाब होगी नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यमन के अंदर भी उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर एक लड़ाई या बगावत खड़ी करते हैं, जैसे अवाम और वहाँ की जो फौज हो उसमें तकसीम हो और इनके खिलाफ जाए, क्योंकि हमसे मैनेज नहीं हो पा रहे। सो आप ये सोच लें कि सारे अब इजराइल से लड़ने से कतरा रहे हैं। वो यमन हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ से उसका हाइपरसोनिक मिसाइल आता है। अब गालिबन यमन ने कहा था रिसेंटली कि हम सरप्राइज देंगे, इनके पास इससे भी ज़्यादा तबाहकुन मिसाइल है। अब आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें कि अगर ये मिसाइल वो जाकर इनके हेडक्वार्टर पर हिट कर दें, यानी इनकी फौज के हेडक्वार्टर पर हिट करें या इनके मिसाइल प्रोग्राम पर हिट करें, तो आप बताइए कि बाकी सूरत हाल क्या बचेगी। तो जो यमन की इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है इजराइल के लिए,
अब इजराइल ने प्लान ये किया, वो अमेरिका को कह रहा है कि ट्रम्प के आने से पहले पहले मुझे असल में हमला करना है यमन के ऊपर, और उसने बुलाया है कई और ममालिकों के आओ हमारा साथ दो, हम मिलकर यमन के ऊपर यलगार करते हैं, वॉर डिक्लेयर करते हैं। देखिए यमन से कोई पंगा लेना नहीं चाहता, इंडिया ने इनकार कर दिया था, उसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज ने इनकार कर दिया था। उन्होंने इसराइल को कहा हमने साथ नहीं देना, यूरोपियन कंट्रीज ने इनकार कर दिया, बाकी तो आप छोड़ें, जो सूरत हाल है। इनकार क्यों किया? सबसे बड़ी उसकी वजह थी, देखिए यहाँ से जो कंटेनर्स आते हैं या शिप्स जाते हैं, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के अंदर वो इनका मुकाबला करे। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, वो जाते हैं, उनके जहाज़ जाते हैं, हिट करके आ जाते हैं, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप अंदर से कोई लड़ाई करवा दें, लोगों को सड़कों पर निकाल ले, या आप कंटिन्यूसली अपनी फ़ौज उतार दें। और फ़ौज उतारने वाला जो मामला है, आपको पता है अमेरिका ने रिसेंटली ये बात कही थी कि हम कोशिश करेंगे हम यहाँ पर फ़ौज उतारें। उन्होंने कहा था कि हम तो इंतज़ार करें उस दिन का कि आप यहाँ पर फ़ौज उतारें, हम आपका जो हशर करेंगे आप अफगानिस्तान भूल जाएंगे। डिफेंस उसके सामने घुटने टेक चुका है। 30 रिपोर्टेड इंजरीज आफ्टर मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन स्ट्रक तल अवीव। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 30 इंजर्ड हुए, एक मिसाइल 30 इंजरी, और वो भी सेटलर्स की, वो भी सेंट्रल तल अवीव के अंदर हिला के रख दिया इसने। और इस्राएली मीडिया की जुबानी अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखने जा रहे हैं, और आज इस वाकये से मजीद सबूत आपके सामने रखेंगे कि जो कुछ शाम में हो रहा है वो किसी तौर पर इसराइल की विक्ट्री नहीं है। इसराइल को रेजिस्टेंस ने डिफीट दी है, इसराइल को ढेर किया है, और जो भी इसराइल को सहूलतकारी कर रहे हैं उसको विक्टोरियस पोर्ट्रे करने के लिए वो भी किसी काम ना आएगा। और इसराइल ये जंग हार चुका है, हर हवाले से हार चुका है, और इसकी हार में मजीद इजाफा होता चला जाएगा। जरा इसराइली मीडिया की जो स्टेटमेंट्स है आपके सामने रखेंगे। एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग्स एडजेसेंट टू द स्टेडियम हिट बाय यमनी मिसाइल्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स हिट हुई हैं। अब जरा इसराइली मीडिया का उनकी अपनी जुबानी देखिए, वो जो अंदर चीजें दब गई थी ना कि अच्छा जी शाम में घुसे हुए हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। देख रही थी ना इसराइली सोसाइटी, उनके ऑफिशियल्स के अच्छा हम क्या फाते हो रहे हैं दोबारा से, तो वो अब चीजें जो दब गई थी वो खुलकर सामने आ रही हैं कि कोई फतह नहीं है, बल्कि इसराइल उसी डिफीट और कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है जैसे लेबनान सीजफायर से पहले बढ़ रहा था। इसराइल फाइंड्स इटसेल्फ अनेबल टू कन्फ्रंट द चैलेंज ऑफ हॉस्टेज फ्रॉम यमन एंड हैज फेल्ड टू कन्फ्रंट देम। इसराइल के पास कोई चारा ही नहीं है कि हौसियों को किस तरह से रोका जाए। जहां अमेरिका और बरतानिया नहीं रोक सके, दरवाजे पर जाकर बैठे हैं, तो 2000 किलोमीटर दूर बैठकर इसराइल क्या करेगा। तो इसराइली मीडिया कह रहा है कि हौसियों को रोकना इसके बस की बात ही नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं हौसी इसराइल के लिए। इसराइल रियलाइज द डेंजर ऑफ थ्रेट कमिंग फ्रॉम द ईस्ट टू लेट। यही तो है ना, एक फ्रंट पहले गजा का, फिर उधर लेबनान का, फिर दूसरा, तो ईस्ट से भी एक फ्रंट मौजूद है जो बहुत बड़ा हमला कर सकता है। ये इसराइल को बाद में टू लेट उसको एहसास हुआ, टू लेट उसको रियलाइज हुआ कि ये ईस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ी पावर बैठी हुई है। तो इससे वो मुराद इराक की बात कर रहे हैं, यमन की बात कर रहे हैं। द इजरायली आर्मी इज एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टीज इन डीलिंग विद यमनी थ्रेट्स बोथ डिफेंसिवली एंड ऑफेंसिवली। इजरायली आर्मी इस वक्त शदीद मुश्किल में है कि हौसियों के साथ कैसे डील किया जाए। डिफेंस करने में भी इसराइल नाकाम है और ऑफेंस करने में भी, यानी यमन पर हमला करने में भी ट्रबल है। द हौसी इन यमन हैव स्वेयरली अफेक्टेड द रीजनल एंड इजरायली इकोनॉमी फॉर मोर देन अ ईयर। एक साल से ज्यादा का अरसा हो गया है और इसराइल की इकोनॉमी को शदीद तर नुकसान यमन ने पहुंचाया है। इजरायली फोर्सेज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज वर स्लो टू रिस्पॉन्ड द थ्रेट एंड आर करंटली सीकिंग टू गैदर इंटेलिजेंस ऑन द हौसीज। अब जो है वो इसराइल इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है कि हौसियों को किस तरह से इनका सामना करना है, क्योंकि पहले वो इधर उलझ रहा है। यही तो, ये इतने ज्यादा फ्रंट इसलिए बनाया गया ना कि पहले एक से लड़ेगा इसराइल, फिर दूसरे से, फिर तीसरे थे, और सारे के सारे। वहां हिजबुल्लाह कौन सा खत्म हो गई है, हिजबुल्लाह खत्म तो नहीं हुई है। तो यमन इंतजार कर रहा था, जब उनको इशारा मिला अब वो हमलावर हो गए। तो अब इसराइल इंटेलिजेंस गैदर कर रहा है कि भाई अच्छा हौसियों का क्या करना है, कैसे इनको कन्फ्रंट करना है। द रिसेंट इजरायली एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द हौसी वर मोर लाइक अ शो। ये जो ताजा तरीन इसराइल का हमला यमन के ऊपर हुआ है, ये क्या था? ये बस एक शो था विदाउट कॉजिंग सिग्निफिकेंट मिलिट्री डैमेज और अचीविंग द डिजायर्ड डेटर्स। ये बस एक छोटा सा मुजाहरा था और इसराइल अपने उस डिजायर गोल्स और डेटर्स को हासिल नहीं कर सका। ये तो कल परसों भी हमने आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखी थी कि अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल को बताया है कि यमन की डिक्शनरी में डेटरेंस का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहे कोई ऐसी स्ट्राइक, कोई ऐसी कामयाब स्ट्राइक नहीं थी, बस एक छोटा सा मुजाहरा किया। इजरायली मीडिया लिख रहा है
फिर जरा देखिए वो रेजिस्टेंस की टेक्नोलॉजी के बारे में, खासकर जो ब्लिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के बहुत कम मुल्कों के पास है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस की ये जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर गालिब आ गई है। देयर आर इंप्रूवमेंट्स इन ब्लिस्टिक मिसाइल्स दैट हैव बिकम सुपीरियर टू द एरो डिफेंस मिसाइल। दुनिया का जदीद तरीन एयर डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके ऊपर गालिब आ गई है रेजिस्टेंस की ये टेक्नोलॉजी। As the pioneer air defense project unfortunately failed 4 times in a row to successfully intercept ballistic missiles, 3 times from Yemen and 1 from Lebanon. ये जो मतलब बहुत ही उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और दुनिया में इसके ऊपर वो कहते हैं कि ये देखो हमने क्या बनाया है। तो लेबनान से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं रोक सका ये सिस्टम फॉर इजराइल। ये 48 घंटों में दूसरी डायरेक्ट हिट है जो तल अवीव के अंदर हुई है और बड़ा एम्बैरेसिंग हो रहा है इजराइल के लिए। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वी कैन नॉट इमेजिन द हौसीज डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस। वो कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हौसियों को पता ही नहीं कि उन्होंने ये क्या हमला किया और इसका मतलब क्या है। यार ये उनको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि उन्होंने किस लेवल की एस्केलेशन कर दी है। तल अवीव को हिट किया, 30 सेटलर्स को निशाना बनाया, तो उनको पता है कि उन्होंने किस लेवल की एस्केलेशन की है। So we are assuming they made preparation for a serious escalation। तो इससे वाज़ेह है कि उन्होंने फिर भरपूर आगे से तैयारियां भी कर ली हैं इस एस्केलेशन। जब उन्होंने अगले फेज का बटन दबाया है तो फिर तैयारी करके दबाया ना। So if they can sustain, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे इजराइल ट्रैप में फंसने जा रहा है। So if they can sustain or even increase this, all aspects of normalcy in Israel are going to be cut short and that's very costly। अब ट्रैप क्या है? अब इजराइल को एक बड़ा हमला करना है यमन के ऊपर अपनी डेटरेंस शो करने के लिए, तो वो एक बड़ा हमला करेगा जिसके लिए यमन तैयार है और यमन ने अपना हमला करने से पहले इसकी तैयारी की है। तो जब इजराइल का हमला होगा तो यमन फिर अटैक करेगा। अब जरा ये तजिया देखिए जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सबूत है मजीद। इजराइल इज नॉट विनिंग, इट्स एक्सपेंडिंग एंड एस्केलेटिंग and trying to isolate different fronts of the war। इजराइल जीत नहीं रहा है बल्कि इजराइल एक्सपैंड कर रहा है और ये डिफरेंट फ्रंट्स को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। yet none of them is under control and its position is extremely risky in each of them। लेकिन वो किसी को भी कंट्रोल में नहीं ले सका है और इजराइल की पोजीशन बड़ी रिस्की हो गई है। This looks like it could be the beginning of new phase। तो इस तजिए के आपको क्या समझ आई? वो ये कह रहे हैं बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर उन्होंने इस बात को समझाया है कि इजराइल की शिकस्त क्या है। इजराइल की कोई फतह यहां पर नहीं, इजराइल यहां पर जीत नहीं रहा है। इजराइल कर क्या रहा है? इजराइल सिर्फ एस्केलेट कर रहा है, इजराइल सिर्फ एक्सपैंड कर रहा है। एक्सपैंड इन अ सेंस कि जंग को वो थोड़ा सा फैला रहा है। यानी अगर उसके ऊपर कोई एक गोली चला रहा था तो अब उसने आगे से 2 चलाना शुरू कर दी हैं। तो ये एस्केलेशन डोमिनेंस है जो इजराइल की हमेशा से रही है कि अगर कोई एक मुक्का मारता है तो वो 2 मुक्के मारेगा। ये एस्केलेशन डोमिनेंस है। Even if propaganda of the modern world tells you the other way। Israel has totally lost this war. 1 year into this genocide, Israel is losing on all fronts. Militarily, economically, in the public sphere, and even within its own civil society. Militarily, Israel has no receipts to show for fulfilling their 2 objectives: rescuing the hostages and eradicating Hamas. No numbers, no timeline, no update. Instead, they have left Gaza in complete ruin with over 40,000 killed and the entirety of its 2 million population displaced. Economically, Israel has never been in a worse position. It has burned through cash, capital and resources, some analysts revising the cost to $67 billion due to the recent conflict with Lebanon. And to top it all off, no one likes Israel. The Hasbara media propaganda machine has thrown billions of dollars down the drain, failing to win over the younger generation and even losing the support of their crutch ally, the United States. Israeli unity is on the brink of total collapse. No matter how you look at it, Israel has lost. The defense minister he fired, although he was proud to shut the electricity, the water, food to the Gaza people, and he too which should be hanged from the neck, and none of them should be spared. Gant or other opposition member, all those extremists, Zionists, there should not be one of them left alive. And it the public's rage, and very likely the uprising is going to be headed by all the relatives of the hostages who've been deliberately avoided and killed. And actually they died because of the
a friendly firing of, or you can say intentional firing of Netanyahu's IDF, and now you can see what's happening, how humiliated, defeated he was by Gaza, by Hamas, by, I think now you can see the Yemen emerge from. So God Almighty, the nature, will never let the blood of those innocent children burnt alive. And look at this woman telling the Americans beasts. And so you can see the scum of these Zionists, whether they are Jews or Christians in Israel or in the United States, are the one who have in the center of the whole worry. And over there is a comedian in Ukraine, another Jew, and who is destroying his own country. And Netanyahu has done the same thing. He stabbed his own people by going to Syria. He should have consolidated whatever he's got left and should have been, satisfied. Instead, his greed to spread and destroy is, then when living in a glass house, he's throwing stones at others, knowing fully well that a small tiny pebble is going to smash the whole glass house he's trying to live in, and find himself that he is going to be safe. He can't. And see that the reverse, I think the immigration, all the settlers leaving the brain drain, the doctors, the engineers, the technocrats, the businessmen, and look at the ailing economy, and there is nothing for Israel now to survive. So it's going to have a slow, miserable and a very painful death. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार जरूर